Okay, welcome back. So the first question that we are having in the dictionary is something like this. Take a key and a value of a dictionary and print the dictionary. After that, print the same dictionary with the value as a keys and keys as a value, right? So पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको keys आ रहे हैं, right, as a input and then values आ रहे हैं आपके dictionary के लिए for these keys. आपको क्या करना है, प्रिंट करना है डिक्शनरी जहाँ पे की इज़ ए कीज़ एंड वैल्यू इज़ ए वैल्यूज़. देन आपको मतलब उल्टा करना है, लाइक आपको क्या करना है, अब 1 to 3 विल बिकम अ की एंड दिस विल बिकम अ वैल्यू, राइट? सो दिस थिंग यू हैव टू डू. ओके, लेट्स ट्राई इट आउट. So what I will say here is, let's say I will say here keys. Keys is equal to, like key मैं बोलूँगा key is equal to and list. I'll create a list out of it because I want to use the zip function. So मैं यहाँ पे map use करूँगा, map, and let's say okay, if you can see here these keys, these are the character values, right? यहाँ अगर मैं यहाँ पे int रख रहा हूँ, let's say int use करेंगे पहले, what will happen, then accordingly we will change our code. And यहाँ पे I have to pass the message keys to receive that. So I will say here keys colon and give the space. Now I will use a split here and they are splitted by comma, right? That's it. That's for the key. And let's say value के लिए I will say here value is equal to list. I will create here as well. And यहाँ पे मैं map function use करूँगा. I will use the int here comma input. मैं यहाँ पे mistake कर रहा हूँ intentionally, like values colon dot split, right, and split by comma, right? So after that हमें क्या करना है, हमें डिक्शनरी क्रिएट करना है. let's say I will say dict 1, dictionary 1 is equal to dict, and यहाँ पे I will say key comma value which will create my dictionary, key comma value, right, and which will create my dictionary. Then I will create a dictionary 2 and same thing I will say here dictionary जहाँ पे मैं values को value रखूँगा and key को key रखूँगा, right? So after that what I have to do is I have to print it. So I will say here print पहले मैं dictionary 1 को print करूँगा, then I will print dictionary 2, right? So if I will submit it now, okay, so some error is coming here, right? ये बोल रहा है कि input line number 2 में error है, जहाँ पे क्या है इनपुट लेटर रहता है इंट बेस ए. ओके, यहाँ पे अगर आप देख लोगे ना, सी व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से यू दैट, कि अगर यहाँ पे कीज़ देखना है, कीज़ यहाँ पे कैरेक्टर्स है, से दिस इज़ अ कैरेक्टर, दिस इज़ अ कैरेक्टर एंड दिस इज़ अ कैरेक्टर. बट अगर आप अपने मैप फंक्शन में देख रहे हो, आप इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, इंटीजर में. सो बेटर इज टेक इट एज अ कैरेक्टर ओनली. सो आई टुक इट एज अ कैरेक्टर एंड नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, की डॉट, ओके सॉरी, यहाँ पे डॉट डाला है मैंने इंस्टेड ऑफ कॉमा. सो आई विल से हियर कॉमा. And now let me submit it. And since no error is coming, got you, the error is like this. Error यहाँ पे क्या है, we have to use the zip function. So I will use here zip, and using the zip function you can create a dictionary. So I'll be using here zip, and यहाँ पे भी मैं zip use करूँगा. I will say here zip zip zip, right, and this will create my dictionary. That's it. Now let me submit it here. ओके, द डिक्शनरी हैज़ बीन क्रिएटेड. लाइक सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं बट एक टेस्ट केस फेल हो रहा है. अगर आप इस टेस्ट केस में देख लोगे, यहाँ पे क्या है, एस टी 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 एस टी. ओके, दीज आर द वैल्यू, दीज आर द वैल्यूज़. ये तो ठीक हो रहा है बट यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है. जब आप इसको की बना रहे हो और इसको वैल्यू बना रहे हो, राइट, तब यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है. अब इसको रिजॉल्व हम कैसे करेंगे, लेट्स ट्राई इट आउट. सेट तो बना नहीं सकते क्योंकि सेट अनऑर्डर कर सकता है. ओके, लेट मी ट्राई इट हियर. तो मैं क्या कर लूँगा, फॉर द डिक्शनरी 2, इस डिक्शनरी को मैं ऐसे नहीं बनाऊँगा. अब मैं क्या करूँगा, डिक्शनरी तो ये तो ठीक है, राइट, दिस डिक्शनरी 1 इज़ ठीक, बट डिक्शनरी 2 में गड़बड़ हो रहा है इस आउटपुट पे, राइट. तो वहाँ पे क्या आना चाहिए, NS10T. देखो डिक्शनरी का कोई रिवर्स वर्जन है नहीं जहाँ पे आप पहले की लाओगे फिर वैल्यू लाओगे, राइट, बट हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं. तो मैं क्या करूँगा, डिक्शनरी 2 को क्रिएट करने के लिए, सो आई विल यूज़ द डिक्शनरी 1 ओनली. मैं डिक्शनरी 1 को ही यूज़ करूँगा, उसको यूज़ करके डिक्शनरी 2 बनाऊँगा. लेट मी क्रिएट हियर डिक्शनरी 2 एज एन एम्प्टी डिक्शनरी, एंड देन आई कैन यूज़ हियर फॉर k कमा v, यानी कि की वैल्यू आई विल टेक फ्रॉम द डिक्शनरी 1 आइटम्स से. आई विल से डिक्शनरी 1 डॉट आइटम्स, राइट. सो यहाँ से मुझे आ रहा है की एंड वैल्यू, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा डिक्शनरी DICT2 डिक्शनरी ऑफ, यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, जो आपका वैल्यू है उसको क्या कर दो, की डाल दो. दैट्स इट. एंड देन आई विल प्रिंट हियर डिक्शनरी 2, प्रिंट डिक्शनरी 2.
2. Okay, that's it. And if I will submit it, now all the test cases are passed, right? lambda function भी आप यूज़ कर सकते हो, लिस्ट कंप्रेंशन भी आप यूज़ कर सकते हो. लेट मी ट्राई दैट एज वेल. अगर मैं ऐसा ना करूँ तो फिर मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ. लेट्स ट्राई इट. एंड मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स से आई विल से डिक्शनरी 2 इज इक्वल टू, एंड आई विल क्रिएट हियर डिक्शनरी, एंड इसमें मैं कंप्रेंशन यूज़ करूँगा. क्या करूँगा, आई विल से के colon b. Why I am doing here, because I will use that for loop na, for k comma v in dict dictionary 1 dot items, right? तो यहाँ पे k आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू कमा की, वैल्यू कमा की. okay, now if I print the dictionary 2, and I will say here print dictionary 2, that's it. And if I submit it, okay, all the test cases are passed. So ऐसे भी it is possible, right? So both the ways are possible. I guess you know why I am doing this thing, because कि यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है. अगर आपको S9 T10 आ रहा है, बट जब मैं इसका बना रहा हूँ डिक्शनरी, तो वो क्या बन रहा है, it becomes like this: 1 is S, 2 is T, 3 is S, 4 is T. वो हमें नहीं चाहिए. like this मैं बोल रहा हूँ, वो हमें नहीं चाहिए. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दिस काइंड ऑफ थिंग. लाइक अगर मैं यहाँ पे zip फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, आई विल से डिक्शनरी 2 इज इक्वल टू, जस्ट अंडरस्टैंड इट, आई एम शोइंग इट अगेन. वीडियो बड़ा हो रहा है, बट इट्स ओके, यू कैन स्किप दोज हु गॉट इट ऑलरेडी. सो आई विल से हियर वैल्यू कमा की, राइट? सो इफ आई विल प्रिंट द डिक्शनरी 2, आई विल से हियर प्रिंट, एंड यहाँ पे आई विल से डिक्शनरी 2, राइट? दैट्स इट. एंड इफ आई विल सबमिट इट, देखो ये गड़बड़ हो रहा है. यहाँ पे क्या आ रहा है, ये अब कीज़ बन रहे हैं, ये वैल्यू बन रही है. तो ये क्या बन रहा है, 1s 2t 3s, लाइक दिस, 1s 2t 3s 4t 5s, लाइक दैट, राइट? बट हमें आउटपुट क्या चाहिए, ये वाला डिक्शनरी. दैट्स द ओनली रीज़न आई एम यूजिंग द प्रीवियस डिक्शनरी. वो प्रीवियस डिक्शनरी के ऊपर ही मैं आइट्रेट कर रहा हूँ की वैल्यू निकाल के, एंड डिक्शनरी 2 बना रहा हूँ. गेटिंग दिस पॉइंट? सो दिस इज़ रॉन्ग नाउ, राइट? एंड दिस कैन बी द आइडियल वन. या तो वो फॉर लूप के साथ, या तो ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, बोथ आर सेम. That's it. Okay, let's move to the next one. Okay guys, now see the next question. The question is regarding to this thing. You are getting a list of random integers, right, of your choice, and आपको क्या करना है, फाइंड करना है प्राइम या नॉट प्राइम, राइट? सो इफ़ यू नो कि हम प्राइम कैसे फाइंड करते हैं, नॉट प्राइम कैसे फाइंड करते हैं, सेम रूल विल बी अप्लाइड हियर, राइट? जैसे आप एक नंबर को प्राइम चेक कर रहे हो, क्या वो प्राइम है या नहीं है. प्राइम क्या होता है, इफ़ द नंबर, अगर वो किसी और नंबर से डिविजिबल होता है एग्जैक्टली, राइट, एक्सेप्ट फॉर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो वो क्या है, नॉट प्राइम. बट अगर वो डिवाइड ही हो रहा है 1 और नंबर इटसेल्फ से, तो वो क्या है, प्राइम, राइट? सो सेम थिंग वी हैव टू यूज हियर. सो लेट मी टेक द लिस्ट हियर फर्स्ट. इनिशियली आई विल से हियर लिस्ट 1 इज इक्वल टू, एंड लिस्ट, and take the numbers here. So I will use the map function here. After the map I will use here int के बाद what I have to use, input, and input I'll be using here, there is no message dot split, and split it by comma, right? That's it. कैसे करो. ओके, या तो आप फॉर लूप यूज़ कर दो, या तो आप ये कर दो, यूज़ फंक्शन यूज़ कर दो. लेट्स आई विल यूज़ द फंक्शन. आई विल से इज प्राइम, एंड लेट्स टेक हियर num, and to check it, what I will do here is I will say क्या कर लूँगा यहाँ पे, I will say for I in range, range I will take from 2 to num minus num plus 1. देखो कैसे, जैसे 6, अब 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कौन कर सकता है, 6 का हाफ क्या है, 3, राइट? 4 5 तो कभी करेगा ही नहीं, राइट? तो या मैं ये बोलूँगा कि अगर 3 हाफ ने भी डिवाइड किया तो फिर वो प्राइम है ही नहीं, राइट? सो वही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. मैं हाफ तक जाऊँगा, मैं लिखूँगा नम के हाफ तक, एंड +1 क्योंकि 3 को इंक्लूड भी करना है, तो आई विल से द स्टॉपिंग कंडीशन विल बी 4. एंड यहाँ पे व्हाट आई विल डू हियर इज़ आई विल से इफ़ ये जो आपका नम है, अगर इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई आई, तो रिमाइंडर हमारा क्या आया, 0 आएगा. अगर दिस इज़ अ केस, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, रिटर्न, आई विल से हियर रिटर्न TURN रिटर्न, आई विल से हियर रिटर्न ट्रू, तो ट्रू मैं यहाँ से करूँगा. एल्स आई विल से हियर रिटर्न क्या कर दो आप, रिटर्न करो आप फॉल्स, राइट? वो बट मैं फॉर लूप से बाहर रखूँगा, राइट? अगर वो फॉल इफ़ के अंदर कभी गया ही नहीं, राइट, तो मैं हमेशा फॉर लूप खत्म होने के बाद वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, रिटर्न करे फॉल्स. बट अगर वो इफ़ के अंदर गया तो यहाँ से रिटर्न क्या करेगा, ट्रू. आपका दिस फंक्शन विल स्टॉप हियर, राइट? आपका फॉर लूप स्टॉप हो जाएगा, आपका फंक्शन भी स्टॉप हो जाएगा, राइट? दिस इज इट आई गेस. ओके, लेट्स यू ट्राई. ये हो गया आपका.
अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा डिक्शनरी कंप्रेशन। आई विल से हियर डिक्शनरी 1 ले लूँगा यहाँ पे, राइट। सो लेट मी, अगर इफ़ यू रिमेंबर इट हाउ टू डू इट, अगर आपको आता है तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, आई हैव टू यूज़ द फॉर लूप। आई विल से फॉर वैल इन किस में, लिस्ट 1 में, दैट मीन्स हर एक वैल्यू हम ले लेंगे। अब जो फॉर के अंदर मुझे लिखना है वो कहाँ आएगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़, यहाँ पे लिखूँगा इफ़ वैल, नहीं इफ़ वैल नहीं, आई हैव टू चेक इज़ इट प्राइम और नॉट। आई विल से इज़ प्राइम एंड प्राइम, यहाँ से हम पास करेंगे आर्गुमेंट एज अ वैल। सो आई विल बी पासिंग हियर आर्गुमेंट एज अ वैल, राइट। आर्गुमेंट वैल किया मैंने। अगर वो ट्रू था, अगर वो ट्रू था तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर वो ट्रू है दैट मीन्स दैट इज़ नॉट प्राइम, राइट। अगर यहाँ से रिटर्न ट्रू हुआ तो वो प्राइम नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा नॉट प्राइम, PRIME प्राइम। एंड डिक्शनरी बनानी है, सो की वैल्यू है, तो मैं बोला वैल इज़ नॉट प्राइम, राइट। तो ये हुआ। एंड अगर एल्स, एल्स में क्या बोलूँगा, प्राइम, एल्स, एल्स आई विल से हियर प्राइम, राइट, in a double quote, else I will say here prime. That's it. Okay. I hope this will work. Let's say here print, I will say dictionary 1. Let me submit it. Okay, some of the test cases are passing, some of the test cases are failing. Let's see the reason. Here 1 not prime, prime. Okay, 1 के लिए हमने यहाँ पे हैंडल नहीं किया है क्योंकि we are starting from the 2 itself ना. So what I will do here is I will say here something like this. If अगर ये num आपका क्या है, num is equal to 1, अगर वो 1 के बराबर है तो यहाँ से मैं रिटर्न क्या करूँगा, रिटर्न I will return here क्या, false, right. Yes, I will return here true. ट्रू करूँगा तभी तो नॉट प्राइम आएगा ना. इफ़ दिस इज़ ट्रू इट इज़ नॉट प्राइम, राइट. एल्स में क्या करूँगा, एल्स आई विल डू नीचे वाला थिंग, एल्स अगर 1 नहीं है, कोई और नंबर नहीं है, तो आई हैव टू डू दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन, राइट. दैट्स इट. नाउ इफ़ आई सबमिट इट, ओके, ऑल द टेस्ट केस आर पास, राइट. ऐसे भी आप कर सकते हो. हाँ, आप यहाँ पे लिस्ट भी बना सकते हो, लाइक दिस इज़ कमिंग वन मोर वे इन माई माइंड. वो तो सेम ही हो गया फिर. चलो दिखाता हूँ. वो तो सेम ही हो गया, इट्स नॉट सम न्यू थिंग. सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, आई विल क्रिएट हियर लिस्ट 2. लिस्ट 2 इज इक्वल टू, अब मैं लिस्ट यहाँ पे बनाऊंगा एंड देन जिप फंक्शन यूज़ करूँगा. मैं लिखूँगा यहाँ पे नॉट प्राइम, सेम थिंग जो आपका फॉर लूप लिखा है, नॉट प्राइम इफ़, हाँ दिक्कत करेगा, इफ़ इज़ प्राइम एंड वैल, then I will say here else prime, then I will use the follow for val in list 1, right. That's it. अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डिक्शनरी 1 को क्रिएट करना पड़ेगा. डिक्शनरी 1 इज इक्वल टू जिप फंक्शन यूज़ करूँगा. दैट विल से हियर डिक्शनरी जिप एंड आई विल जिप व्हाट, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2. That's it. Let me submit it. Okay, all the test cases are passed, right. So I guess it is necessary for me to do the dry run. मैं इसको dry run भी कर लूँगा so that you can understand it. चलो यहाँ से dry run करते हैं. So dry run में क्या कर लूँगा, so first thing first, आपका यहाँ पे लिस्ट में क्या आ रहा है. If you know it is let's take the above one, that is 1, 3, 1, 3, 4, then we are having 5, then we are having 6, then we are 7. I'll run it for the couple of values, then rest of the values are same, right. So ये आपका लिस्ट यहाँ पे बन गया, right. So यहाँ पे क्या बोल रहे हो, ये this is the definition list 2. यहाँ पे बोल रहे हो not prime if या ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये चीज़ आप ऐसे भी लिख सकते हो. अगर मैं यहाँ पे for loop लगा दूँ, I will say for, it is somehow like this, for val in list 1, right. then आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, if is prime, you are calling here function, and यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, val, right. अगर ये चीज़ है तो आप क्या कर रहे हो, not prime लिख रहे हो, या आप लिख रहे हो यहाँ पे डिक्शनरी ऑफ val is equal to not prime, right. else आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे, डिक्शनरी ऑफ val is equal to prime, right. this is the thing that you are doing here, right. this is the thing that bear with my handwriting. okay. so यहाँ पे ये देख लो, ये इसका चीज़ ऐसा कुछ बन रहा है, right. so यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, I am doing something like this. I am saying for val in list 1,
ओके लिस्ट 1 में जाएंगे, इफ़ इज़ प्राइम वैल, दैट मीन्स यू आर कॉलिंग दिस फंक्शन वैल। अब यहाँ पे नम में क्या आया, नम यू आर इनिशियली हैविंग हियर, दैट इज़ योर इसमें क्या है 1 है, इस पर 1 है, राइट। सो अब आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ़ नम इज़ इक्वल टू 1, येस नम इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पे आप रिटर्न क्या करो, ट्रू। तो इस जगह पे आपको क्या आ गया, ट्रू। यू नो इफ़ ट्रू आई विल कम इनसाइड डिक्शनरी ऑफ वैल, दैट मीन्स आप डिक्शनरी बना रहे हो यहाँ पे, राइट। वैल वैल क्या आपका 1 एंड वैल नाउ विल बी इक्वल टू नॉट प्राइम, आई विल से हियर NP नॉट प्राइम, राइट, एंड दैट्स इट। सो फिर जैसे ये हुआ फिर से आप फॉर लूप के पास गए, अब वैल का वैल्यू क्या है आपके पास, नाउ वैल सेकेंड टाइम यू आर हैविंग इज 3, राइट। सो आप फिर से यहाँ से गए, यहाँ पे इसको कॉल कर दिया, राइट। सो इस प्राइम में नम क्या है, अब नम यू आर नाउ हैविंग इज 3। नाउ आप चेक कर रहे हो क्या नम 3 के बराबर है, नहीं, एल्स में आओगे, फॉर आई इन रेंज 2 कमा नम डिवाइड बाई 2 प्लस 1, अब नम डिवाइड बाई 2 कर दो, नम दैट इज यूर 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इज 4, 4 डिवाइड बाई 4, सॉरी 4 डिवाइड बाई 2, 4 divided by, sorry, it is 3 plus 1 divided by 2, sorry 3 divided by 2 plus 1, so it will be 1 plus 1, it will be equal to 2, right। so 2 यहाँ पे आ जाएगा, आप क्या करोगे, फॉर आई इन रेज 2, आई आपका क्या है 2, क्या 2 लेस देन 2 है, नहीं, आप कहाँ पे जाओगे, फॉलो के अंदर जाओगे, नहीं, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे हो, फॉल्स, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स, राइट। इफ़ फॉल्स, क्या आप अंदर जाओगे, नहीं, आप कहाँ पे जाओगे, एल्स पार्ट में, एंड यहाँ पे क्या है प्राइम, दैट मीन्स यहाँ पे आप 3 के लिए क्या बोलोगे, प्राइम, राइट, 3 के लिए यू हैव सेड प्राइम। सो फिर से यहाँ पे से वापस आओगे, अब क्या आपके पास है, वैल, योर वैल इज़ नाउ 4, राइट। अब आप यहाँ पे आओगे 4, नम इज़ नाउ 4, योर नम इज़ नाउ 4। अब फॉर लूप चेक कर लो, क्या 4 1 के बराबर है, नहीं, एल्स पार्ट में आओगे, फॉर आई इन रेज 2 कमा नम डिवाइड बाई 2, नम डिवाइड बाई 2, नम इज योर 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, राइट, 2 प्लस 1 इज 3। अब आई क्या है आपके पास इनिशियली, आई इज इक्वल टू 2, क्या 2 लेस देन 3 है, येस। इफ नम, यानी कि नम क्या आपके पास 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, येस, 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब ये रिटर्न यहाँ से क्या करो, ट्रू, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू। एंड आप क्या बोल रहे हो, डिक्शनरी ऑफ वैल, डिक्शनरी ऑफ 4, यानी कि 4 वो किसके बराबर है, नॉट प्राइम के बराबर है, राइट। सिमिलरली आप फिर से यहाँ पे आओगे, अब क्या है आपका वैल, नाउ यूर वैल इज़ 5, यूर वैल इज़ 5, एंड सिमिलरली यूर नम इज़ ऑल्सो 5, गेटिंग दिस पॉइंट। अब यहाँ पे आप 5 को चेक कर रहे हो, क्या 5 1 के बराबर है, नहीं, फॉर आई इन रेंज 2 कमा नम डिवाइड बाई 2 प्लस 1, सो 5 डिवाइड बाई 2 इज़ 2.5, वो क्या आएगा 2, 2 प्लस 1 इज़ 3, राइट। अब आप चेक कर रहे हो, इफ़ आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, क्या 2 लेस देन 3 है, येस। इफ़ नम यानी कि 5 परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0, नहीं, आप फिर से यहाँ पे आ जाओगे, अब आई किसके बराबर है, 3, क्या 3 लेस देन 3 है, नहीं, आप क्या करो यहाँ से रिटर्न फॉल्स, तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स आ जाएगा, तो आप एल्स क्या करोगे, यहाँ पे 5, दैट मीन्स 5 इज़ प्राइम। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। अगर आप समझ नहीं आया तो खुद से ड्राई रन कर लो एक दो बार, एंड यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, ओके, थैंक यू। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि आपके पास पाइथन प्रोग्राम है, इंटर चॉइस, तो आपको नंबर्स आ रहे हैं, देन आपको क्या करना है, दोज हु, उस इंटीजर का, हर एक इंटीजर का हुज वैल्यू आर द लिस्ट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द नंबर इंटर, राइट। आपको क्या करना है कि सपोज आपके पास ये आ रहा है 1, अब 1 को कौन कौन सा डिवाइड कर रहा है वो आपको लिखना है, राइट। 4 किससे डिवाइड हो रहा है वो आपको लिखना है, उसमें लिस्ट क्रिएट करना है उसका। 6 किस से डिवाइड हो रहा है वो उनका लिस्ट आपको लिखना है यहाँ पे, एंड 8 किस से डिवाइड हो रहा है उनका लिस्ट क्रिएट करके इसमें डालना है, राइट। दिस इज़ द क्वेश्चन हियर। सो तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट्स से हियर मैं यहाँ पे लिखूँगा, पहले लिस्ट ले लूँ, लिस्ट 1 इज़ इक्वल टू, एंड आई विल से हियर इंट नहीं क्या लिस्ट, एंड यहाँ पे आई विल से मैप के बाद आई विल टेक द इंटीजर वैल्यूज इंट कॉमा, देन आई विल टेक हियर व्हाट, यस, आई विल टेक हियर इनपुट, and input के बाद I will use the split, and split after split what should I write here, double quote में comma, right, that's it। and after that what I will do here is now I have to check कि किस से नंबर से इसको डिवाइड हो रहा है। तो पहले मैं यहाँ पे डिक्शनरी एक क्रिएट करूँगा, डिक्शनरी 1 इज इक्वल टू 1 एम्प्टी डिक्शनरी, राइट, एंड दैट्स इट। देन मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज़ करूँगा, फैमिली से फॉर वैल इन लिस्ट 1, राइट। तो इनिशियल वैल्यू आपका इसका, सपोज दिस इज माई लिस्ट, तो इनिशियल वैल्यू क्या आएगा 31। अब मैं देखूंगा 31 किस से डिवाइड हो रहा है, राइट। सो आई विल से हियर
यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट करूँगा, लिस्ट इज़ इक्वल टू वन एम्प्टी लिस्ट, राइट, जहाँ पे इन वैल्यूज़ को मैं ऐड करूँगा जो जो उनको डिवाइड कर रहा है. देन आई विल से हियर फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक ले लूँगा, फाई इन रेंज टिल द वैल्यू इट्सेल्फ, राइट, वैल्यू तक ले लूँगा. एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ वैल परसेंटाइल आई, अगर वो 0 के बराबर है दैट मीन्स इट इज़ एग्जैक्टली डिवाइडिंग इट. बट यहाँ पे मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द 2, आई विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द 1 से स्टार्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप बाकियों का देख लो इट्स सेइंग एक्सेप्ट 1, राइट. तो वैल्यू मैंने यहाँ पे ले लिया, दैट मीन्स इट्स एग्जैक्टली डिवाइडिंग, एंड इसको मैं आई में अपेंड कर दूँगा. लेट्स अपेंड इट दिस आई. सी अगर आई इज़ 2 एंड 2 इज़ एबल टू डिवाइड 31, तो मैं क्या करूँगा, उस 31 को अपेंड कर दूँगा इस लिस्ट में, राइट. दैट्स इट. देन जहाँ से ये फॉर लूप ख़त्म होगा तो मैं क्या बोलूँगा, डिक्शनरी ऑफ DICT ऑफ 1 ऑफ वैल इज़ इक्वल टू, it should be equal to what, it should be equal to, yes guys, it should be equal to list itself, right. And after that what I will do here is I will say print what I have to print, I have to print dictionary 1, that's it, right. Now submit. And some test cases are failing here. The reason is okay, यहाँ पे क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, 2 4, ओके यहाँ पे 50 आ रहा है. जैसे ये है आपका 4 है, 4 का क्या आना चाहिए, 2 and 4, दैट मीन्स यू हैव टू इंक्लूड द नंबर इटसेल्फ एज वेल. सो व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल से +1, getting this point. Okay, now if I will submit it, okay, all the test cases are passed. So what I will do here is अब मैं ना इस क्वेश्चन को ना ड्राई रन करूँगा, एंड ड्राई रन करके आई विल शो यू दिस. नाउ सी दिस क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं. लेट्स टेक, ये तो थोड़ा सा बड़ा इनपुट है. लेट्स से द इनपुट दैट यू आर रिसीविंग फ्रॉम द यूजर हियर इज समथिंग लाइक दिस. आपका इनपुट जो आ रहा है दैट इज 2 4 6 8, राइट. ओनली 3 इनपुट्स आई एम टेकिंग हियर. नाउ दैट मीन्स इस लिस्ट में आपके पास क्या है, ये 3 एलिमेंट्स है, राइट. सो आपने यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट किया है. सो आई विल क्रिएट हियर एम्प्टी डिक्शनरी. एम्प्टी डिक्शनरी इज लुकिंग लाइक दिस, राइट. सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर वैल इन लिस्ट 1, दैट मीन्स वैल में क्या आएगा, आप वैल में दैट यू विल कंटेन इज हियर इज 2, राइट. देन आप क्या कर रहे हो, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहे हो. आपने यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट एक क्रिएट किया, राइट, विच इज नॉट कंटेन एनीथिंग एज ऑफ नाउ. फिर आप क्या करो, फॉर आई इन रेंज 2 to वैल +1, राइट. सो आप कहाँ पे जा रहे हो, 2 से स्टार्ट कर रहे हो, कहाँ तक जा रहे हो, वैल +1. दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा इनडायरेक्टली, आप 2 है आपका, दैट मीन्स 2 + 1 दैट इज 3 हियर. आई का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, आई नाउ इज 2. क्या 2 3 से लेस देन है, यस. आप क्या चेक करो, इफ वैल परसेंटाइल आई इज इक्वल टू 0, क्या 2 परसेंटाइल 2 0 के बराबर है, हाँ, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. आप क्या करोगे, लिस्ट डॉट अपेंड आई, तो आप इस लिस्ट में क्या डाल रहे हो, 2. इस लिस्ट में आपने 2 डाल दिया. जैसे आपने 2 डाल दिया तो यहाँ से आप क्या जाओगे, वापस जाओगे कहाँ पे, फॉर लूप के पास. नाउ व्हाट इज द आई वैल्यू, प्रीवियसली आई वाज 2, नाउ आई विल बी 3. इज 3 लेस देन 3, नो. यहाँ पे आप स्टॉप कर दोगे. जैसे आप स्टॉप करोगे, आप यहाँ से फॉर लूप के अंदर नहीं जाओगे, आप कहाँ पे जाओगे, यहाँ पे डिक्शनरी पे. यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिक्शनरी ऑफ वैल, डिक्शनरी ऑफ वैल, वैल क्या आपका 2 इज इक्वल टू लिस्ट, लिस्ट क्या है आपका दिस 2. दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका पहले एलिमेंट बन जाएगा वो बन जाएगा 2, एंड इनसाइड दैट देयर विल बी द 2 लाइक दिस. गेटिंग दिस पॉइंट. सो आफ्टर दैट अब यहाँ से कहाँ जा रहे हो, फिर से यहाँ पे फॉर लूप के वापस जा रहे हो, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट आइटरेशन. एंड सेकंड आइटरेशन में क्या हो रहा है आपका, वैल फॉर वैल इन लिस्ट, प्रीवियसली यू आर हियर, नाउ आपका वैल में क्या आ रहा है, वैल्यू, वैल्यू इज नाउ 4, राइट. नाउ आप क्या कर रहे हो, एक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट, फॉर लूप के अंदर आ रहे हो, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, लिस्ट, राइट, विच इज एम्प्टी एज ऑफ नाउ, नथिंग इज कंटेंट इन इट. फिर आप क्या करो, फॉर आई इन रेज 2 to वैल +1. अब वैल आपके पास क्या है, 4, 4 + 1 इज 5, द 5 विल कम हियर, राइट. अब आप चेक कर रहे हो, आई की वैल्यू क्या होगी इनिशियली 2, ऑब्वियसली 2 से आप स्टार्ट कर रहे हो, सो आई इज नाउ 2. आप चेक करोगे क्या वैल परसेंटाइल आई इज इक्वल टू 0, आप क्या चेक कर रहे हो, 4 परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0, यस, 4 परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0. आप अंदर आ जाओगे, लिस्ट डॉट अपेंड आई, इस लिस्ट में आप अपेंड क्या करो, आई का वैल्यू क्या है 2, तो 2 यहाँ पे ऐड हो गया, राइट. सो आफ्टर दैट यू विल अगेन कम बैक हियर फॉर दिस फॉर लूप. नाउ आई प्रीवियसली इट वाज 2, नाउ आपका आई क्या है, इट इज 3. आप 3 चेक कर रहे हो, क्या 3 लेस देन 5 है, यस. इफ वैल यानी कि 4 परसेंटाइल 3 क्या 0 के बराबर है, नो, 4 परसेंटाइल 3 इज नॉट 0 के बराबर, क्योंकि 4 परसेंटाइल 3 इज 1. क्या 1 0 के बराबर नहीं, आप अंदर नहीं जाओगे, फिर से वापस जाओगे फॉलो पे, राइट. अब आई का वैल्यू क्या होगा,
4, क्या 4 लेस देन 5 है? यस 4 इज लेस देन 5। आप चेक करोगे कि क्या 4 परसेंटाइल 4 इज इक्वल टू 0? यस 4 परसेंटाइल 4 इज इक्वल टू 0। आप इफ के अंदर आ जाओगे, लिस्ट डॉट अपेंड आई, आपका आई का वैल्यू क्या है 4, तो इस लिस्ट में आप 4 अपेंड करोगे, राइट। सो यहाँ से फिर से वापस जाओगे, आई वॉज प्रीवियस, नाउ 4 इंक्रीमेंट करो 1 से, नाउ आई इज बिकमिंग 5, क्या 5 लेस देन 5 है? नो। सो आप यहाँ पे आओगे डिक्शनरी भी, आप क्या कर रहे हो, डिक्शनरी ऑफ वैल, वैल क्या आपके पास 4 इज इक्वल टू लिस्ट, कौन सा लिस्ट, ये वाला लिस्ट। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो 4 कॉलन 2 4, राइट। एक और दिखा रहा हूँ आप 6 का, लेट्स टेक एन एग्जांपल 6, राइट। जैसे आपने डिक्शनरी में ऐड कर दिया, फिर से आप यहाँ पे जाओगे, प्रीवियसली यू आर हियर, अब आपको कौन सा लेना, ये, दैट मीन्स आपका वैल क्या अभी, नाउ योर वैल इज इक्वल टू 6, राइट। देन आप क्या फिर से फॉलो के अंदर आओगे, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, लिस्ट is empty list here, again the empty list you are creating here. Now you are saying for I in range 2 val plus 1, आपका val क्या है 6, तो 6 plus 1 क्या हो गया यहाँ पे 7 आ जाएगा, राइट। अब आप किससे चेक करोगे 2 से, क्या val परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0, क्या 6 परसेंटाइल 2 0 के बराबर है? हाँ है। और आप क्या करोगे, लिस्ट डॉट अपेंड आई, आई मेरा पास क्या है 2, दैट मीन्स 2 आप यहाँ पे अपेंड करोगे, राइट। नाउ आपका आई क्या हो जाएगा, नाउ आई इज 3, प्रीवियसली इट वॉज 2, नाउ आई इज 3, राइट। आप चेक करो 3 लेस देन 7, यस। इफ वैल यानी कि 6 परसेंटाइल 3 इज इक्वल टू 0, यस 6 परसेंटाइल 3 इज इक्वल टू 0। आप इफ के अंदर आ जाइए, लिस्ट डॉट अपेंड आई, आई क्या है मेरे पास 3, सो आई विल अपेंड हियर 3, राइट। अब आई को इंक्रीमेंट करूंगा फिर से 4, क्योंकि यहाँ से आप फिर से यहाँ पे जाओगे इस फॉलो के पास, आई इज नाउ 4, 4 लेस देन 7 है, यस। इफ वैल यानी कि 6 परसेंटाइल 4 इज इक्वल टू 0, नहीं। आप कहाँ जाओगे, यहाँ से ही वापस जाओगे यहाँ पे। अब आई क्या बना आपका 5, क्या 5 इज लेस देन 7, यस। इफ वैल यानी कि 6 परसेंटाइल 5 इज इक्वल टू 0, नो। फिर से आप फॉलो पे जाओगे, नाउ आई इज यूर 6, क्या 6 परसेंटाइल 6 इज इक्वल टू 0, यस। लिस्ट डॉट अपेंड 6, तो मैं यहाँ पे अपेंड करूंगा 6 को, राइट। एंड आफ्टर दैट आई विल बिकम यूर 7, क्या 7 लेस देन 7 है? नो। आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे क्या है डिक्शनरी ऑफ वैल, व्हाट्स योर वैल, इट इज 6, यानी कि डिक्शनरी ऑफ 6 will be now equal to list of this जिससे ये divisible है, that is 2, 3 and 6, right? That's how this program is running. I hope you understood it. अगर नहीं आया समझ, खुद से try run करो एक बार, and I hope you will understand it. Okay, thank you. Okay guys, now let's see second question. The second question is take an integer n from the user and आपको क्या करना है, जो भी नंबर्स आ रहे हैं बिटवीन 1 to n, आपको इनका डिक्शनरी बनाना है और उस नंबर का क्यूब ले लेना है, राइट। जैसे यहाँ पे 5 आ रहा है, सो 1 इज़ 1 का क्यूब इज़ 1, 2 का क्यूब इज़ 8, 3 का क्यूब इज़ 27, 4 का क्यूब इज़ 64, 5 का क्यूब इज़ 125। तो यहाँ पे डायरेक्टली नंबर ले लो, सो आई विल से हियर नम इज़ इक्वल टू, एंड आई विल से हियर इंट इनपुट, राइट, बिकॉज सिंगल नंबर आ रहा है ना, इंटीजर नंबर, सो आई विल टेक हियर इनपुट एज n। नाउ अब मैं क्या करूँगा, लेट्स से डिक्शनरी एक बनाऊँगा, डिक्शनरी 1 इज़ इक्वल टू एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाऊँगा, राइट। सो अब फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, फॉर आई इन एंड रेंज, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है 1 से, एंड जाना कहाँ तक है नम प्लस 1 यानी कि 5 + 1 तक, राइट। सो दैट्स इट। एंड यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, डिक्शनरी DICT डिक्शनरी 1 का आई इज़ इक्वल टू आई का क्यूब, right, that's it. Then I will say here print, and what I have to print, dictionary 1. Okay, all the test cases are passed. यहाँ पे आप एक लाइन भी कर सकते हो इसको, you can do it in a single line as well. So वो कैसे कर लेंगे हम, we'll use dictionary comprehension. You can say, I will say dictionary 1 is equal to, I will create here dictionary, and here I will say something like this, for I in range, for I in range, and here I will say 1 to num plus 1 तक जाओ आप, right, and यहाँ पे क्या करो, जो I का है उसका क्यूब कर दो, right, simply. So I will say I colon here I का क्यूब, that's it. And after that what I will say is print dictionary 1, right, that's it. And if I submit it, all the rest cases are passed. I hope you understood this question as well. यहाँ पे confuse नहीं हो रहा, यहाँ पे list नहीं आ रहा, यहाँ पे it is saying that number, just the number. Okay, that's it. 4 questions are completed. Okay, thank you.